students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 4, that is table in MS PowerPoint 2010. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about the tables जो हमारे MS PowerPoint 2010 में होती हैं. So that is first we are going to study about how to open MS PowerPoint 2010, that how to insert a table, how to resize a table, how to add table groups, what are the table tools, what are the how to add tables and how to add columns in a table, how to add rows in a table, how to delete a row or column, how to split cells, how to merge cells, how to add data in table and how to format the table. And the last one is charts in MS PowerPoint जो हमारे अच्छे से डिस्प्ले कर देता है हमारे डेटा को. So let's begin. Tables are a useful tool within MS PowerPoint 2010. Tables क्या useful tool है हमारे MS PowerPoint 2010 में. They allow us to display important and valuable information in a creative manner. ये help करता है display करने में valuable information को एक creative manner में. By using tables, we can make data appear more organized and easier to grasp. अगर हम यूज़ करते हैं tables को हमारा data बहुत ज़्यादा organized और easy रहता है grasp करने के लिए. A table consists of grid form by rows and columns. एक table में क्या होता है grid form जो होती है rows से columns में where we can input data to convey a meaningful message. जहाँ हम input करते हैं data को एक meaningful message convey करने के लिए. Tables can be resized, recolored or redecorated in such a way that they match the overall design. Tables resized होते हैं, recolored होती है इस वे में कि वो उनको redecorate कर सकते हैं overall design को and color combinations को of presentation. Let's explore the various ways to modify tables in MS PowerPoint 2010. अब हम क्या देखेंगे कि हम कैसे कैसे modify कर सकते हैं tables को अपनी MS PowerPoint 2010. First, we are going to study कि how to open MS PowerPoint 2010 कैसे open करते हैं. To open PowerPoint, double click करना है आपको MS PowerPoint 2010 icon पे in the desktop और type करना है आपको Microsoft Office PowerPoint 10 टाइप हेयर में, या तो आप डेस्कटॉप पे डबल क्लिक कर सकते हो या फिर आप सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंसर्ट अ टेबल. कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल को. फर्स्ट आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देना है. देन आपको टेबल्स टैब पे क्लिक टेबल बटन पे क्लिक करना है. वहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट का. सो आपको क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑप्शंस पे. द इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आपको नंबर ऑफ रोज एंटर करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करने हैं, देन क्लिक कर देना है ओके बटन पे. सो a table will be inserted into the slide according to your specified rows and columns. जो भी आपने स्पेसिफाई करी होंगी रोज और कॉलम्स उसके अकॉर्डिंग वो इंसर्ट हो जाएंगे. नाउ डू यू नो Microsoft PowerPoint was developed by Robert Gaskell and Dennis Austin. किसने करा था डेवलप? रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन ने. For the America's computer software company Forethought. It was initially named as Presenter. इसको initially क्या नेम दिया गया था? Presenter. और कब रिलीज हुआ था? 1987 में. Now कैसे resize करते हैं टेबल को? To resize the table, follow the given step. Take the mouse pointer to the bottom right corner of the table. Bottom right corner में ले जाना अपने mouse pointer को अपने टेबल के. The mouse pointer will change to a diagonal table size, double size arrow. जो mouse pointer है वो change हो जाएगा diagonal double size arrow में. Then click करना है, drag करना है अपने mouse को right में, leave when the table is size that you want. जब आपका टेबल का साइज जितना हो जाए, जितना आपको चाहिए, फिर आपको अपने माउस पॉइंटर को छोड़ देना है. डायगोनल शेप आएगा वहां तक ड्रैग करना है जहां तक आपको जितनी टेबल और कॉलम्स चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेबल टूल्स. टेबल टूल्स आर विजिबल वंस अ टेबल हैड बीन एडेड. विजिबल होते हैं जब एक बार आपकी टेबल ऐड हो जाती है. The design and layout tab consists of various tools and commands. इनमें बहुत सारे tools और commands होते हैं, including table style होता है, border shading etc. They are essential tools when modification of a table is required. ये essential tools होते हैं जब modification table की required होती है. Now how to add rows in a table. कैसे add करते हैं rows table में? To add a row in a table, follow the given step. First आपको क्या करना है? क्लिक करना है, put the cursor above or below the row where you want to insert a row. कि above लगाओ या below लगाओ जहाँ पे आप row insert करना चाहते हो. Then क्लिक करना है आपको टेबल टूल्स पे. टेबल टूल है, टैब अपीयर हो जाएगा. टैब टॉप पे आके टाइटल बार में then क्लिक कर देना आपको लेआउट टैब पे. Over there a menu will appear having insert above और insert below ऑप्शन. वहाँ पे insert above और insert below का ऑप्शन अवेलेबल होगा. रोज में in the row and columns group
देन क्लिक करना है ऑन द ईदर ऑफ ऑप्शन, जो भी आपको चाहिए, अबव चाहिए या बिलो चाहिए। देन अ रो विल बी एडिड टू योर टेबल जॉब की, अगर आप अबव लगा होगा अबव ऐड हो जाएगी, अगर ब्लू करा होगा तो ब्लू ऐड हो जाएगी आपकी रो। नाउ एडिंग कॉलम्स इन अ टेबल, हाउ टू ऐड द कॉलम्स इन अ टेबल। So to add a columns in a table, follow the given steps. Select करना आपको column next to which you want to insert a column, जहाँ पे आपको insert करना है column. And after selecting column, a table tool tab will appear on the top of the title bar. एक table tool tab appear होगा title bar के top पे। then select करना है वहाँ से आपको layout tab को select करने के बाद दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए, insert right या insert left। आपको right में insert करना है या फिर left में insert करना है। देन को सेलेक्ट कर लो आपको इधर ऑफ द साइड, अगर आपको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट वाले को सेलेक्ट कर लो, अगर राइट में करना है तो राइट वाले को सेलेक्ट कर लो। देन कॉलम क्लिक करने के बाद आपका कॉलम ऐड हो जाएगी आपकी टेबल में। नाउ डिलीट कैसे करते हैं कॉलम को, रो और अ कॉलम कैसे डिलीट करते हैं। टू डिलीट अ रो फॉलो द कॉलम, फॉलो दीज गिवन स्टेप्स। फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है रो और कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन एनी सेल इन दैट रो और कॉलम। रो या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी सेल पे, उस पर क्लिक करके। देन सेलेक्ट करना आपको लेआउट बटन, वो लेआउट ऑफ टैब पे जाने के बाद टेबल टूल में टेबल टूल अपीयर हो जाएगा। देन क्लिक करना है डिलीट बटन पे, डिलीट बटन पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा जहाँ पे ऑप्शन होता है टी, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल के 3 ऑप्शन अवेलेबल है। सो जो भी आपको चाहिए उसमें से सेलेक्ट करना है आपको दी एनी ऑफ दीज ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आपको डिलीट करनी कॉलम, कॉलम पे कर दो क्लिक, डिलीट करनी है रो तो डिलीट रो उस पे क्लिक कर दो, टेबल ही डिलीट करनी है तो डिलीट टेबल पे क्लिक कर दो। नाउ स्प्लिटिंग सेल्स, स्प्लिटिंग अ सेल मींस डिवाइडिंग अ सेल इनटू 2 और मोर पार्ट्स। इसका मतलब होता है आपको डिवाइड करना सेल 2 या उससे ज्यादा पार्ट्स में। एट टाइम्स यू नीड टू स्प्लिट वन सेल इनटू स्मॉलर सेल्स, कभी कभी आपको एक सेल को स्मॉलर सेल्स में स्प्लिट करना होता है, सो दैट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मे बी बेटर। लेट अस लर्न हाउ टू स्प्लिट सेल, कैसे करते हैं स्प्लिट सेल्स को। To split a cell, follow the given steps. First, place करना आपको cursor in the cell that need to be split, जो आपको split करना है वहाँ पे आपको अपना cursor अपने उस सेल में प्लेस कर देना है। Then table tab tool tab पे जाना है, वो अपीयर होगा आपके सामने टाइटल बार पे। So then select करना है आपको layout tab को, then choose करना है आपको split cell option, क्लिक कर देना है उस पे and split cell dialog box appear हो जाएगा showing adjustment in the form of number of columns and number of rows के adjustment number of columns या number of rows आएगा show होता हुआ which the cell will be splitted, ठीक है, जिसमें cell आपको split करना है। then select करना है आपको number of columns and number of rows according to your choice, then click कर देना है ओके पे। मर्जिंग सेल्स, कैसे मर्ज करते हैं सेल को, मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स टू वन सेल, कंबाइन कर देते 2 या उससे ज्यादा सेल्स को एक सेल में। दिस कैन बी डन टू यूज सेवरल रोज को यूज करने के लिए कॉलम्स में स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। टू मर्ज सेल फॉलो द गिवन स्टेप, आपको सेलेक्ट करना है सेल दैट नीड टू बी मर्ज, जो आपको मर्ज करना है एंड क्लिक करना है लेआउट टैब पे, जो प्रेजेंटर टेबल 2 टैब में एक मेन्यू अपीयर होगा, चूज करना है आपको मर्ज सेल ऑप्शन एंड क्लिक कर देना है और इस पे एक बार, देन बोथ द सेल्स विल मर्ज, दोनों सेल्स मर्ज हो जाएंगे एक में। सिमिलरली वी कैन मर्ज मोर देन 2 सेल्स इन अ सिंगल ग्रुप, इसी तरीके से हम 2 सेल को एक सिंगल ग्रुप में मर्ज कर सकते हैं। एडिंग डेटा इन अ टेबल, टेबल में डेटा को कैसे ऐड करते हैं। वी हैव लर्न टू इंसर्ट अ टेबल एंड ऐड रोज एंड कॉलम्स टू इट। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू ऐड डेटा इन अ टेबल, कि कैसे ऐड करते हैं डेटा टेबल में। सेलेक्ट अ सेल बाय लेफ्ट क्लिकिंग द माउस, सेलेक्ट करना है सेल लेफ्ट क्लिक करके माउस पॉइंटर पे ऑन दैट सेल एंड टाइप करना है डिजायर्ड मैटर एंड प्रेस करना है टैब की टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल पर मूव होने के लिए। When you have completed adding data to the table, click करना है आपको कहीं भी outside the cell। Formatting the table, कैसे format करते हैं टेबल को। Formatting refers to arranging the data in such a manner that it looks like। अब formatting का मतलब होता है कि आप इस way में arrange करो डेटा को कि वो अच्छा लगे and easily understandable हो by the reader। Besides changing style, size and color of the font used in table, you can also add borders and shading to the table। और border और shading भी ऐड कर सकते हैं अपनी टेबल में। तो वेज होता है एट देन विच आर टेबल कैन बी फॉर्मेटेड, जिस तरीके से टेबल फॉर्मेट होती है। बिफोर फॉर्मेटिंग बाय यूजिंग द टेबल्स एंड बॉर्डर्स टूलबार, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट ऑप्शन प्रेजेंट इन डेट्स एंड देयर यूजेस। हम डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो उसमें प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या यूजेस होता है। फॉर्मेटिंग अ टेबल स्टाइल, कैसे फॉर्मेट करते हैं टेबल स्टाइल को। अ टेबल स्टाइल इज अप्लाइड बाय डिफॉल्ट, टेबल स्टाइल अप्लाइड होता है डिफॉल्ट से जब आपका टेबल इंसर्ट करते हो। So different table styles can be viewed on opening design tab। different style tabs को देख सकते हो, different design tab को ओपन करके टेबल स्टाइल ग्रुप में फॉलो करना आपको। गिवन स्टेप्स को अप्लाई करने के लिए चेंज टेबल स्टाइल, सेलेक्ट करना है आपको टेबल को, वो स्टाइल यू वांट टू चेंज, इसका स्टाइल आपको चेंज करना है।
देन इन डिजाइन टाइप यू विल बी एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल टेबल स्टाइल। अब डिजाइन टाइप में आप देख सकते हैं अवेलेबल टेबल स्टाइल से एंड क्लिक करना ड्रॉप डाउन बटन पे टेबल स्टाइल टैब में टू एक्सेस मोर देन टेबल स्टाइल्स। इन ऑर्डर टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल क्लिक करना है उस पर। चेंजिंग टेबल शेडिंग कैसे चेंज करता है टेबल शेडिंग को। Shades of a table or particular cells of a table can be changed by following the given steps. Select करना आपको desired table and then design tab. And then in design tab click कर देना आपको shading button पे. Select करना desired color from the given shades of color and it will apply to the selected table. वो apply हो जाएगा आपके selected table में. Now जो है ना eraser can be used to erase lines. Eraser use हो सकती है erase करने के lines from the table. For this click करना है आपको eraser पे in design tab. Aligning table in aligning text in a table कैसे align करता है table text को table में. Alignment refers to a placement of the data. तो aligning का मतलब क्या होता है alignment का कि आप placement कैसे करते हो data की left में right में या फिर center में. So MS PowerPoint gives you the choice of alignment data in 3 different ways. 3 different ways में choice देता है left, center and right. 3 different ways आ गए आपके. अगर आपको select अगर ये करना है तो आप if you select the table select करते हो टेबल को क्लिक करना है आपको लेफ्ट अलाइन वगैरह लेफ्ट लाइन पे लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करोगे अब वो आपका डेटा लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा. देन लाइकवाइज सेलेक्ट करोगे आपका राइट लाइन द डेटा विल बी द डेटा इन द टेबल आपका राइट में अलाइन हो जाए. अगर आप सेंटर पे सेलेक्ट करोगे तो आपका सेंटर में आ जाएगा. Now applying border to the table. Border कैसे अप्लाई करते हैं टेबल एंड borders are added to the table to give them a well defined appearance. जिससे उन्हें एक अच्छा सा अपीयरेंस मिल जाए. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल. सो सेलेक्ट करना है आपको स्पेसिफिक सेल्स कॉलम और रोज यू वांट टू ऐड बॉर्डर तो जिसमें आपको बॉर्डर को ऐड करना है. इन द डिजाइन टैब क्लिक करना आपको बॉर्डर बटन में जो प्रेजेंट आपके टेबल स्टाइल बुक में देन सेलेक्ट करना है बॉर्डर जिसमें आपको that you wish to apply the cells column or row जिसमें आपको cells column और rows apply करने हैं. So like this your border will be applied. Now border color. Now let's talk about border color. So border color can be changed using the pen color button. Pen color button को use करके हम border के color को change कर सकते हैं. Follow the given steps to apply border color. Select करना आपको table जिसका आपको border apply करना है. So in the draw border group design in draw border group in design tab of table tools click करना आपको pen color button पे. Select करना आपको color अपनी preference का from the color palette जो appear होगा आपके सामने. Now simply left click करना आपको mouse button पे apply करने के लिए selected color को to the border of the table. Now border style, what is this? In line of style of border of a cell row column can be changed using the border style. वो change कर सकते हो border style को use करके. Follow the given steps to use this feature. In design tab under the table tab आपको select करना है pen style button. After that from the drop down list जो आपके सामने appear होगी select करना आपको pen style of your choice जो भी आपके टाइप का pen style होगा इस टाइप का आपको select कर लेना है. Then click कर देना है आपको border whose style you want to जिसका आपको style choose करना है वो apply हो जाएगा. Charts in MS PowerPoint 2010. Charts are used to display the data in a pictorial form. Charts किस लिए यूज होता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में. They help us to make comparison, show growth, bands and establish relationship among the values. ये किस लिए हेल्प करता है हमें ग्रोथ शो करते हैं बैंड करते हैं एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप वैल्यूज के बीच में ऑफ द गिवन डेटा. दे आर नॉट ओनली इफेक्टिव डिस्प्ले टूल से खाली इफेक्टिव डिस्प्ले टूल नहीं है बट ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द गिवन डेटा. Charts can sum up large sum of data and present them in a meaningful way. वो sum up कर सकते हैं बहुत सारे डेटा को और meaningful way में present कर देते हैं. Now components क्या क्या होते हैं charts के. Here are some components of a chart. Chart area. It consists of area of chart and all the objects contained in it. Area of chart होता है या जो भी objects contained होता है उसमें उसको हम chart area कहते हैं. Category axis, it is horizontal axis which covers the मैटर. या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जो कवर करता है मैटर जो प्रेजेंट होता है चार्ट में एंड कंपेयर करता है उनको. वैल्यू एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है जो शो करता है लेबल्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और परसेंटेज वैल्यू. प्लॉट एरिया, इट इज द एरिया विद इन द चार्ट. ये एरिया होता है चार्ट के अंदर जिसमें क्या होता है वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं लाइक डेटा सीरीज कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस. लेजेंड, कलर पैटर्न और सिंबल्स इन द डेटा आर पोर्ट्रेट बाय लेजेंड. जो कलर्स होते हैं पैटर्न्स होते हैं सिंबल्स होते हैं वो पोर्ट्रेट किससे होता है लेजेंड से होते हैं.
chart title, the aim and content of the chart is mentioned in it. जो aim और content होता है chart का, किस बारे में आपका chart वो chart title में mention होता है. Grid lines they extend across the chart, ये extend करते एक chart में and show make understanding the chart simple and easier. Now creating a chart, कैसे create करते हैं chart को? To create a chart, follow the given step. First आपको click करना है insert tab पे. Then select करना है आपको chart from the various chart option display होंगे, वहाँ से आपको chart को select करना है. Then chart option display हो जाएंगे आपके styles of the chart option will display different styles को display करेगा. Then आपको select करना है required type and required type को select करने के बाद then आपको click कर देना है OK पे. Now changing type of a chart. Type कैसे change करते हैं chart का? The chart type can be changed as per the requirement of the user. User की requirement के according change कर सकते हैं. Follow the given steps to change the chart type. First आपको select करना है chart you wish to change, जिसको आपको change करना है. Select click करना है आपको design button पे. This two step then change chart type option appear होगा आपके left corner अपने आपके screen के. Then as you click on it, जब आप उस पर click करोगे एक box appear हो जाएगा. A box with a number of charts के साथ एक box appear होगा. Then आपको chart type will pop up. Then click करना है आपको desired chart style पे. Then type कर press कर देना है OK. A new chart appear हो जाएगा आपकी screen पे. Now modifying a chart. Chart कैसे modify करते हैं? To modify a chart, follow the given step. First आपको click करना है chart पे. Chart पे click करने के बाद chart tool tab appear हो जाएगा आपके सामने display हो जाएगा. इन द टाइटल बार वहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट. 3 ऑप्शन आने के बाद आपको क्लिक कर देना है डिजाइन पे अगर आपको डिजाइन करना है, लेआउट पे क्लिक करना है अगर आपको लेआउट करना है चेंज, अगर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है. सो नाउ हाउ टू मॉडिफाई शेप, स्टाइल एंड कलर ऑफ अ चार्ट. To follow the given steps to modify style of lines and add different effects to a chart. First आपको select करना है area whose style is to be changed by clicking on it. आपको area select करना है जिसका आपको style change करना है उस पर click करके then choose करना है shape outline option from the shape style group in the format tab to choose the change color of outline. You can access more styles. आप और style को access कर सकते हो by clicking on shape fill option पे click करें, shape effect बटन पे click करके जो क्या शो करेंगे बहुत सारे स्टाइल शो करेंगे आपके पावर पॉइंट में. मॉडिफाइंग बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न्स ऑफ अ चार्ट. बैकग्राउंड तो कलर्स को पैटर्न्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं. वी कैन चेंज द कलर, हम कलर चेंज कर सकते हैं, पैटर्न एंड बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट का. फॉर दिस फॉलो सम स्टेप्स. Going first step you have to follow is you have to place the pointer on the plot area. आपको plot area पे तो पॉइंटर प्लेस करना है इन द लेआउट टैब एंड टू राइट क्लिक कर देना है. देन सेलेक्ट करना है आपको फॉर्मेट प्लॉट एरिया फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स. देन यू कैन मेक चेंजेस, आप चेंजेस कर सकते हो बॉर्डर स्टाइल में, बॉर्डर कलर में, शेडो इफेक्ट्स में. देन आपको सेलेक्ट करना है पिक्चर और टेक्सचर फिल ऑप्शन फ्रॉम फिल टैब. देन यू कैन सेलेक्ट एनी टेक्सचर, आप कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हो उस पर टेक्सचर बटन पे क्लिक करके. आफ्टर मेकिंग द डिजायर्ड चेंजेस आपको क्लिक करना है क्लोज बटन पे टू कम आउट ऑफ द विंडो से बाहर आने के लिए. इन द सेम वे आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट लाइक लेजेंड्स, एक्सेस, चार्ट एरिया, ये सब चीजें चेंज कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू ऑल लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ ग्लोरियस डे.